Well, good evening, everyone. Please come on in, settle down. We'll just give just a half minute for folks to settle down. Yes. All right. Yep, so I'll start while folks will keep joining. Let me pull up my presentation and be ready. All right. So here we go. Right. Okay. All right. So formally welcoming all of you to this session, the online training session on understanding AI. This is the second of its kind, the second session that we are having, which talks about understanding AI. Today, it's all about artificial intelligence everywhere. We keep hearing it day in and day out. So it's important for us to know what exactly AI is, and some of it I've covered in the first session, the recording of which is available on our YouTube channel, Acumen Today YouTube channel. The same channel will have the recording of today's session as well. So welcome to this session, wherein we will not only learn basics of AI, but also look at some applications wherein artificial intelligence can help us better in assisting us, in helping us to be more effective and to be more productive. All right, so that is what we're going to talk about today. All right. Yes, so artificial intelligence in education. It's all about how we empower the educators. Unless and until we don't empower the educators, we will not be able to empower the next generation. The next generation is basically the students. And if we don't empower our students, who are our future, we will be failing in our duties. And with the Gen Z and the millennials, they are fast picking up on using artificial intelligence for various different purposes. We'll take a look at all of that. All right, so what's in store today? Rise of assisted intelligence. Right, we will talk about assisted intelligence. We will talk about data-driven decision making when it comes to running an educational institution, streamlining operations, and also look at how we could make use of the streamlining of the process to personalized learning, the support that we can give to individual learners. And then we will talk about assessments, evaluation, and the effect of streamlining not just the processes, not just the lesson plan, not just the timetable, but also the assessments and evaluation. All right, so that is what we're going to cover. So before we start, I want to talk about a small news article, or a news, not article, sorry, a news item that has come up in News Australia. It's been some time back. So what I'm going to do is I'm going to play this video. Right, it's important that we set the context here. Right, so allow me a minute to get to sharing the screen and play the video. All right, yes. So the future of AI is already here, and we'll see what these guys have covered as part of their implementation of AI in the classroom. All right, so let me just play this. Artificial intelligence is hitting Queensland classrooms. In the hands of children, it could be detrimental for their learning, but for teachers, it could be a game changer. Computers planning lessons and potentially one day marking students' work, saving hours every week.
It's long been feared what artificial intelligence could do when it hits our classrooms. But now it's well and truly here, and we're being told AI could actually be the key to success in schools. We create tasks, activities, resources. A lesson already learned at Brisbane's St Oliver Plunkett Primary. It saves so much time for our teachers, which means that they can do what teaching is about, engaging and teaching and being with the students. The Productivity Commission has found in 2023, full-time teachers spent an average of 15 hours a week preparing lessons and marking. One trial finding AI could cut that in half, saving 9.5 hours a week worth of admin. The tech also making standardised curriculums easier to understand. You could start with a class example that was about sailing and say, rewrite this example for a class that have never seen the ocean. The states and territories are at different stages when it comes to using AI in public schools. New South Wales and South Australia have tools available for all teachers, something Queensland and WA are still developing. Victoria only provides guidance to teachers about AI, while in Tasmania and the territories, AI isn't yet allowed in schools. The federal government being pushed to streamline the process. What are the most effective tools? There should be collaboration to buy those tools and make them available to schools. But not everyone is convinced. The Australian Education Union saying teachers want a significant cut in their administration workloads, not just offloading it to AI, calling instead for real action to end the teacher shortages. Okay, nevertheless, the crux of the matter here is that it helps in reducing close to 15 hours of my time, right? 15 hours a week. So what I do is I will share this link with you folks. Take a look at it. It brings in a different perspective to all of us. So here you go. The link is available. 15 hours a week is quite a lot of time. And what would you do with these saved hours? What would you do with this saved time? You would naturally spend this much time with the students. And that's your primary job. अगर आप students के साथ time spend नहीं करोगे, तो कहाँ करोगे? एडमिनिस्ट्रेटिव काम तो है ही, बट अगर एडमिनिस्ट्रेटिव काम में मुझे एआई की मदद मिल जाए तो द सेव्ड टाइम आई कैन probably spend it on creating something new as experiential learning, or maybe a new project or a new assignment or a new team activity for my students. Right, so 15 hours a week is not less. Now, how do I get to make use of AI to save these 15 hours? Let's see. India में 15 नहीं ज़्यादा भी हो सकता है. So the rise of artificial intelligence, ये तो हम stop नहीं कर पाएंगे. ये stop कर ही नहीं सकते. AI is here and AI is here to stay. It is for us to ensure that I will learn AI and see how AI can help me in my day-to-day work, wherein I will also learn something new, something better, something different, bring in a new perspective, bring in a new point of view, and that will help in furthering the knowledge. अल्टीमेटली टीचर का काम वही है ना कि हम ज्ञान बांटे और ज्ञान बटोरे. So it is both ways. I'm not only sharing my knowledge, I'm also exchanging the knowledge. सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, बट अभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मुझे कुछ सिखा के जाएगा. So let's see how all this is happening. ये पिछली बार मैंने कवर किया था. So when we talk about artificial intelligence, हम AI की बात करते हैं, तो AI is not artificial intelligence alone.
AI for me as an educator, as a teacher, as a coach, and as a mentor is additional intelligence. It is something additional. जो मुझे पता है उससे थोड़ा ज्यादा AI मुझे बता सकता है. So that becomes additional intelligence. वो additional intelligence provide कर रहा है मुझे कि मैं उसको क्लास में उसका इस्तेमाल कर पाऊं, बच्चों को कुछ अलग सिखा पाऊं, बच्चों को कुछ और सिखा पाऊं, सिलेबस से हट के नहीं, in line with the syllabus. Maybe a relevant example of today. एक एग्जाम्पल लेते हैं. Everybody uses Google Map today, right? Yes. Google Map has become an essential part of our lives. कहीं भी जाना है पहले गूगल मैप पे देखते हैं कि कितना डिस्टेंस है, कितना दूर है, कितना टाइम लगेगा, ट्रैफिक कितना है एंड ऑल दैट. यस, बट अल्टीमेटली गूगल मैप करता क्या है? इट टेक्स यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. यस, एज लॉन्ग एज यू नो द लोकेशन, वो कोऑर्डिनेट्स डाल के वो बताता है कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के लिए ये रास्ता सबसे फास्ट है और इस रास्ते में आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बट अलग रास्ता भी है, राइट? यस. मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं? बिकॉज एडिशनल इंटेलिजेंस में यहां पे ऐसे दे सकता हूं जैसे going from point A to point B is actually, or finding the distance between point A and point B is actually geometry. Oh wow, yes. So I can actually talk about Euclidean geometry a little bit. But most importantly, I will talk about coordinate geometry because A is a coordinate and B is a coordinate. So it is coordinate geometry. So जब मैं Google Map के बारे में बात करूंगा, example, I will talk about how coordinate geometry has been used by Google Maps for making our lives easy. तो अगर ऐसे एग्जाम्पल्स मैं बच्चों को क्लास में अगर दे पाऊं तो इट बिकम्स इजियर. और एक एग्जाम्पल, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल when we talk about science, right? STEM education, right? So when we talk about science, reflection and refraction. Yes, okay. So reflection क्या है? Simple thing. जो टेक्स्ट बुक में है वो तो पढ़ाते ही हैं, जो एग्जाम्पल में है वो तो हम सिखाते ही हैं, right? So reflection is like you stand in front of a mirror and you keep moving. Angle of incidence is equal to angle of reflection, right? All of that thing becomes very theoretical. But अगर मुझे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उनको बताना है, सिखाना है या करवाना है, तो आई कैन आस्क, किसको किसको पूछूंगा मैं? बहुत सारे टूल्स है ना अपने पास, राइट? वी यूज चैट जीपीटी. चैट जीपीटी अकेला नहीं है, को पायलट भी है, कौन सा क्लाउडे भी है, राइट? क्या कौन सा है? गूगल जेमिनी भी है, एंड देन परप्लेक्सिटी. ओके, सो इफ यू आर यूजिंग एयरटेल कनेक्शन, राइट? अगर आपके पास एयरटेल का कनेक्शन है तो परप्लेक्सिटी आपको 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो इस्तेमाल करो, राइट? और जो भी फ्री है वही इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा हूं मैं. और जब आपको उसका फायदा लगे तो probably you can think of maybe paying some subscription for a month or 2 and see how it will all work. तो ये जो है एडिशनल, वो becomes an मेरा असिस्टेंट हो गया ना, एडिशनल हो गया, उसके बाद असिस्टेड इंटेलिजेंस हो गया. वो मुझे असिस्ट कर रहा है. असिस्ट कैसे कर रहा है? ताकि रेलेवेंसी लेके आए. आजकल बच्चे क्लासरूम में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं. इंटरेस्ट कैसे बढ़ाएं? इंटरेस्ट बढ़ाने का तरीका यही है कि वी अलाइन देयर सिलेबस टू समथिंग दैट इज रेलेवेंट एंड व्हाट दे आर सीइंग इन देयर डे टू डे लाइफ्स. एज सिंपल एज दैट. सो
मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिल गया, मुझे एडिशनल क्या एक्टिविटी भी मिल गया. तो देन इट बिकम्स असिस्टेड इंटेलिजेंस. ओके, असिस्टेड इंटेलिजेंस क्या होता है? ओके, तो वो मुझे असिस्ट कर रहा है. तो सिर्फ नॉलेज देना एडिशनल हुआ. असिस्ट कैसे करेगा? असिस्ट ऐसे करेगा कि वो क्वेश्चंस भी तैयार करके देगा. अच्छा, तो ये जो टॉपिक है हमारा, विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने गूगल मैप का एग्जांपल बताया. जब मैं गूगल मैप का एग्जांपल बता रहा हूं तो एट द एंड ऑफ द क्लास आई वांट टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस. सो मुझे एमसीक्यूज चाहिए, मुझे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस चाहिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस चाहिए, राइट? तो वो क्वेश्चंस भी बना के देगा और सजेस्टेड आंसर्स भी बता देगा. ब्यूटीफुल. आपका काम और आसान हो गया. क्यों? क्योंकि इट नोस व्हाट यू वांट. क्योंकि अब तक वो ट्यूनिंग हो गया, 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए तो उसको पता चल गया कि आप मैथ्स के टीचर हो, साइंस के टीचर हो, और ये कॉन्टेक्स्ट है, और ऐसा रेलेवेंसी लेके आना है, और ये देना है आपको, तो वो दे देगा. सो दैट बिकम्स असिस्टेड इंटेलिजेंस. ओके, ये पढ़ाने की बात कर रहा हूं. पढ़ाने के अलावा भी वो असिस्ट कैसे कर पाएगा, कैसे करेगा? इज बाय ऑटोमेटिंग a lot of administrative tasks. एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क क्या होता है? अटेंडेंस. ठीक है, अटेंडेंस तो लेना ही पड़ेगा. अटेंडेंस लेने के बाद जब वो कंप्यूटर में जाता है, तब एट द एंड ऑफ द डे, राइट, कौन एब्सेंट है, कौन प्रेजेंट है, पेरेंट्स लोगों को इतला करना है, उनको व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, ये सब बैकएंड में ऑटोमेट कर सकते हैं. उसके लिए टूल्स की जरूरत होती है. वो टूल्स हम बाद में बात करेंगे, बट क्या क्या ऑटोमेट हो सकता है? आजकल तो एसएमएस ऑटोमेट हो गया. व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, बट व्हाट्सएप ग्रुप में डालना पड़ता है. बट व्हाट्सएप ग्रुप को भी ऑटोमेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मेरे पास डेली अटेंडेंस है, जो एब्सेंट है उनके पेरेंट्स को ही व्हाट्सएप जाना चाहिए, ना कि ग्रुप में जाना चाहिए. तो दिस इज ऑल रूल बेस्ड. ये रूल्स मैं सेट कर सकता हूँ. इसके लिए वो छोटे छोटे एप्लीकेशंस रहते हैं, वो भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं. बहुत सारे फ्री हैं, कुछ कुछ पेड भी है. सो दैट बिकम्स असिस्टेड. ये सिर्फ अटेंडेंस की बात नहीं. असाइनमेंट्स देते हो आप लोग, अभी अभी क्वेश्चंस दिए, राइट? एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर. तो आपको एक रेफरेंस मिल गया कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, और द इंटेंशन ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन इज टू गेट द राइट आंसर्स. नॉट दैट वो जैसे मैं मेरा चैट जीपीटी ने दिया है वैसे ही बच्चों को लिखना है, नहीं. वो पॉइंट्स आए हैं क्या, मुझे वही चेक करना है. अच्छा, ठीक है. तो अभी क्वेश्चंस भी हो गए, उसके आंसर्स भी आ गए, बट बच्चों को कैसे बोलोगे कि आपको मैं इन चीजों पे मार्क्स देने वाला हूं या देने वाली हूं? इन चीजों पे यानी मुझे रूब्रिक्स बनाना है. ओके, व्हाट इज अ रूब्रिक? रूब्रिक इज समथिंग दैट वी विल टेल द स्टूडेंट्स अप फ्रंट कि ये जो मैं प्रोजेक्ट दे रही हूं, ये जो मैं प्रोजेक्ट दे रहा हूं, उसका इवेल्युएशन भी मैं कैसे करने वाला हूं. फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया है? ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसका रेलेवेंस जो मेरे सिलेबस का है उसके साथ क्या है, वो कैसे जोड़ रहे हो? हाउ आर यू ब्रिंगिंग द इंटरकनेक्टेड, कोरिलेटेड एंड इंटीग्रेटेड, इंटररिलेटेड एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग, राइट? सो ये सब मैं बोलूंगा कि अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो उसको 5 मार्क मिलेंगे. अगर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो उसको एडिशनल 5 मिलेंगे. अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 दिए तो 7 मार्क मिलेंगे, 3 दिए तो 10 मार्क मिलेंगे. ऐसे अगर मैं रूब्रिक बनाऊंगा तो इट बिकम्स इजी फॉर देम टू फोकस एंड गेट और मार्क्स. अभी फिलहाल 2 दिन पहले या कल कल की बात है शायद, सीबीएसई ने ऐलान कर दिया कि इस साल 9वीं कक्षा के बच्चों को ओपन बुक एग्जाम देने वाले हैं.
वाह, बढ़िया। अभी ओपन बुक एग्जाम दे रहे हैं, तो आप जो बुक में क्वेश्चंस है वही वही थोड़ी ना पूछोगे। नहीं पूछ सकते, नहीं पूछ सकते हो, बट जो जो है वो अगर लिखेंगे तो सब लोग 95, 96, 100% ले लेंगे। The intention is not to give more marks or cut marks. The intention is to see how much they have learned and how much can they apply what they have learned. So, for example, ninth में reflection, refraction नहीं होगा, but I'll take that example, right? नहीं है ना, concave, convex, right? Lens, all of it. So the question would be, if I am in outer space, right? If I'm in outer space and I have a concave lens, how will the Earth look like? थोड़ा सोच के बच्चों को आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मेरे चैप्टर के क्वेश्चन इसमें नहीं है एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज में। बट अगर मुझे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस और मिरर का कंसेप्ट मुझे पता हो, और आउटर स्पेस में कैसा होता है, आउटर स्पेस में तो मुझे वो ग्रेविटी नहीं होता है वो पता है, बट वहां जाने से अगर मेरा कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव होता है, या उधर रिफ्रैक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, वो सोच के आंसर देना पड़ेगा, राइट? सो दिस विल बी द ओपन बुक एग्जाम। और अगर उसके लिए आपको तैयारी करनी है, बच्चों की, बच्चों से तैयारी करवानी है फॉर ओपन बुक एग्जाम, you will have to challenge yourself first, and then we challenge the children with some interesting stuff like this. तो ये कहां से आएगा? ये मैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से ले सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम यानी क्या, अपना जो बता रहा हूं वही है, ठीक है? आई एम श्योर यू ऑल ट्राइड इट, कीप ट्राइंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब ये बात कर रहे हैं, तो द नेक्स्ट थिंग वुड बी एडेप्टिव इंटेलिजेंस और एडेप्टिव इनोवेशन दैट वी विल ब्रिंग, ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस एंड ऑटोनोमस इंटेलिजेंस। ये 5 अलग तरीके के इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हम कर पाएंगे। ये मशीन दे रहा है ना मुझे, मशीन के पास है, इट विल पिक एंड इट विल चूज एंड इट विल कम एंड गिव मी वेरियस डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो मुझे सीखने को बहुत मिलेगा, और हमें वही तो सीखना है, राइट? टीचर है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ टीचिंग टीचिंग करते रहूंगी। नहीं, टीचिंग करने के लिए पहले तो कुछ सीखना तो पड़ेगा, राइट? तो क्या सीखे? हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा। आज का जमाना ऐसा हो गया है, आज का टाइम ऐसे हो गया है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है नया, अदरवाइज वो तो कंप्लेंट है ही। बच्चे ध्यान नहीं देते, बच्चे क्लासरूम में कंसंट्रेशन नहीं है उनका, उनका ध्यान कहीं अलग है, उनको सीखना ही नहीं है, राइट? ऐसा नहीं है, उनको सीखना है, दे आर क्यूरियस, but they're not finding value in the class because I am not bringing in that additional information, additional intelligence. अगर मैं वो कर पाऊं तो it becomes easy. Now, for example, Newton's law, right? Newton's law है नौवीं the 9th 10th में शुरू हो जाता है, right? So अगर Newton's law का मुझे चांद पे इस्तेमाल करना है, तो वो कैसे होगा? सोचो। Yes. So one is common sense, and the other is that I bring in the physics and the mathematics, all of it together. So ये जब सोचने पे हम मजबूर करेंगे खुद को और हमारे बच्चों को, तभी ना नॉलेज बढ़ेगा। और that is what India is looking for, building a knowledge society, not an educated society. Now it is all about knowledge. How will I bring in more knowledge? How will I make India the knowledge capital of the world? AI का इस्तेमाल करके खुद का भी नॉलेज एनहांस करेंगे ना, right? So this is what we had covered. If you want, you can take a look at the video link. मैं वो भी शेयर कर देता हूँ आपसे, right? So एक मिनट, पिछले पिछले टाइम का
जो हमारा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था, उसका वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ, राइट। बहुत बहुत सारे हैं, but the most important thing is this one. Yes, एक घंटे का है, बट आप एक घंटे थोड़ी ना देखोगे। तो yes, I am sharing this link on the chat, तो आप इसको देख लो। और हमारे चैनल पे असिस्टेड इंटेलिजेंस पे, देन एडिशनल इंटेलिजेंस पे, सम यूज केसेस, एग्जांपल्स, एडेप्टिव इंटेलिजेंस, उस पे भी छोटे 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 वीडियोस भी हैं, राइट। सो वो भी आप देख सकते हो, जो लिंक मैंने भेजा है उसके जरिए। ऑल राइट, एंड देन स्पेसिफिक रोल्स, व्हेन वी टॉक अबाउट specific role that we want AI to help us with, it augments or replicates aspects of human cognition. Human cognition यानी अपना सोच, right? With additional intelligence and assisted intelligence, वो मुझे चैलेंज कर रहा है कि सोचो, आप भी सोचो, आपको भी सोचना है। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचोगे तभी आप बच्चों को और ज्यादा अच्छी तरह से सिखा पाओगे। तो दिस इज व्हाट इट इज, लेवल्स ऑफ एआई इंटेलिजेंस इन टीचिंग। बेसिक असिस्टेंस, जो जो अभी हमने बात किया, राइट। एनहांस्ड सपोर्ट, वो सपोर्ट करेगा, किस में सपोर्ट करेगा? इवैल्यूएशन में सपोर्ट करेगा, टैबुलेशन में सपोर्ट करेगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन में सपोर्ट करेगा। तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग एवरेज हैं, कितने लोग बिलो एवरेज हैं, कितने बच्चे अबव एवरेज हैं। सिर्फ उतना नहीं, कितने बच्चे एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, और वही बच्चा अगर दूसरा कंसेप्ट है तो उसमें कम मार्क्स ले रहा है, राइट। यस, कई बच्चे मैथ्स और साइंस में बहुत अच्छे रहते हैं और लैंग्वेजेस में बहुत वीक हो जाते हैं, राइट। वो काम का नहीं है। वी वांट होलिस्टिक डेवलपमेंट, राइट। सो एनहांस्ड सपोर्ट, कोलैबोरेटिव इंटरेक्शन, राइट। आई विल कोलैबोरेट, जो उस वीडियो में देखा आपने, राइट, जो ऑस्ट्रेलिया न्यूज में था, राइट। सो आई विल कोलैबोरेट। It's not just about collaborating with the students, collaborating with teachers. Now I have to collaborate with machines also. So that will lead to AI-led teaching. And going forward, I will have teacher robots also. ये एक एक्सपेरिमेंट किया था बैंगलोर में, एक स्कूल है, कोविड के टाइम में एक्सपेरिमेंट किया था, but it was limited to something that it would just repeat, or it would just talk, right? But interaction उतना ज्यादा नहीं था, but आज के जमाने में वो इंटरेक्शन भी आ जाता है। सो ये सब हो रहा है। It's not that all of this is going to happen in the future. All of this is happening as of now. आपको सोचना है कि ये आप आपके टीचिंग में, आपके क्लासरूम में, आपके स्कूल में इसका इस्तेमाल, इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका उपयोग कैसे कर पाओगे। और इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। शुरू करने की देरी है, राइट। तो इसके लिए सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट के लिए पहले सबको ये समझना है। That is why we are having these sessions of understanding AI. This is our second such session. We are going to have it every 10 to 15 days. We are going to have such sessions going on, right? Okay. Now, having said this, ये सब कुछ जो हम बात कर रहे हैं, artificial intelligence systems and all that, जैसे जैसे हम उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे हम लेजी होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, अरे ये असिस्टेंट है, लास्ट मिनट में करके ना मैं क्लासरूम में मैनेज कर पाऊंगा, राइट। नो, डोंट डू दैट, बिकॉज रिमेंबर दिस, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर क्रेजी फॉर इट, राइट। वो क्रेज आप में आनी चाहिए अभी। क्रेज यानी आपको, हम चैट जीपीटी जब यूज करते हैं या मेटा एआई यूज करते हैं, व्हाट्सएप जब यूज कर रहे हो तो वहां पे भी मेटा एआई है, तो वो भी आपको बहुत कुछ नॉलेज दे सकता है। सो यू हैव टू बी क्रेजी अबाउट इट। बहुत सारे टूल्स हैं, तो कौन सा टूल कब यूज करेंगे, कौन सा टूल अच्छा है,
कौन सा टूल साइंस के लिए अच्छा है, कौन सा टूल मैथ्स के लिए अच्छा है, कौन सा टूल इंग्लिश के लिए अच्छा है, कौन सा टूल जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है, वो भी आपको समझना है और सीखना है, तभी आप कंफर्टेबल हो पाओगे। नहीं तो एक ही पे निर्भर रहोगे ना, तो इट मे नॉट बी द राइट थिंग। सो यू हैव टू बी क्रेजी, थोड़ा बहुत वो क्रेजीनेस चाहिए। एंड नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी फॉर इट। हाँ, सो व्हेन थिंग्स बिकम इजी, डोंट बिकम लेजी। तो ये सब आपका काम आसान कर रहा है, यस। बट जब आपका काम आसान कर रहा है, उसका मतलब ये है कि आपका काम कम हो रहा है और आपका टाइम भी बच रहा है। तो जब आपका टाइम बच रहा है, तो उसका क्या करेंगे आप? उसका सही तरह इस्तेमाल जब करोगे, तभी इसका फायदा होने वाला है। ऑलराइट, यस। सो ये मुझे बताना था। तो ठीक है, राइज ऑफ असिस्टेड इंटेलिजेंस, ये थोड़ा एग्जांपल देता हूं मैं। राइट, ये राइज ऑफ असिस्टेड इंटेलिजेंस। उसके पहले ये भी लास्ट वीक मैंने बोला था कि ये एक किंडल पे एक बुक पब्लिश किया है हम लोगों ने, विच इज कॉल्ड एडेप्टिव इनोवेशन। ये भी एआई आ गया, देखो, एडेप्टिव इनोवेशन, बिकॉज आई हैव टू अडेप्ट। एआई जब आ रहा है, तो मुझे भी अडेप्ट करना है, और अडेप्ट करके मुझे इनोवेट भी करना है। राइट, सो दिस इज अ गुड रीड। ये आप देखो, ये जो लिंक मैंने भेजा है, किंडल किंडल पे है, अमेजॉन किंडल। राइट, सो इट इज बेसिकली एम्पावरिंग एजुकेटर्स, एआई इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। राइट, सो जो हम बात कर रहे हैं, उसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ आपको आइडियाज मिलेंगे। सी, इट्स ऑल अबाउट आइडियाज। जब मैं सीमस में था, तो बहुत बहुत साल पहले, तो इंडक्शन प्रोग्राम होता है। राइट, कंपनीज में जब ज्वाइन होते हो, या कोई इंस्टीट्यूशंस में ज्वाइन होते हो, कहीं पे भी ज्वाइन होते हो, तो इंडक्शन प्रोग्राम होता है। तो इंडक्शन प्रोग्राम में हमें ये सिखाया कि देखो, आपके पास एक आइडिया है, मेरे पास एक आइडिया है, मैंने मेरा आइडिया आपको बताया, आपने आपका आइडिया मुझे बताया, तो अभी क्या हुआ? दोनों के पास दो आइडियाज आए। वाह! अब इन दो आइडियाज को आप मिक्स करोगे, तो आपके पास और दो तीन चार आइडियाज आएंगे, उसके पास भी और दो तीन चार आइडियाज आएंगे। तो दोनों अगर ऐसे शेयर करते जाओगे, तो आइडियाज का भंडार बनते जाएगा। इंटेलिजेंस भी यही चीज है, जितना हम शेयर करेंगे उतना बढ़ेगा। अब यहाँ पे शेयरिंग किसके साथ कर रहे हैं? इंसान के साथ नहीं, मशीन के साथ भी कर रहे हैं। तो इनका इंसान के साथ तो करना ही है। दैट इज वेयर वी टॉक अबाउट adaptive innovation. I have to adapt to the extent as to how I will use machines to help me. I will not want the machines to take over me. नहीं, अगर हम लेजी हो जाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि मशीन ये सब कुछ करेगा, तो हम क्या करेंगे? राइट, वो सोचने वाली बात है। तो इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड एज टू हाउ यू शुड एम्पावर योरसेल्फ। आगे जाके मशीन सब कुछ कर कर लेगा। अभी भी कर रहा है। वैसे 20 साल पहले वॉशिंग मशीन नहीं था, तो घर में वॉशिंग मशीन तो आजकल लगता ही है। कई कई घरों में डिश वॉशर भी आ गया है। वैक्यूम क्लीनर तो पहले से था। अभी तो ऑटोमेटेड रोबोट वैक्यूम क्लीनर है। राइट, वो खुद ब खुद जाता है, सब क्लीन करके आता है। राइट, वाह, वंडरफुल। सो ऑटोमेशन बहुत हो रहा है। घर में सिक्योरिटी, फ्लैट सिस्टम में सिक्योरिटी, वो सीसीटीवी कैमरा है। राइट, वो सीसीटीवी कैमरा में आपका चेहरा भी पहचान लेता है। अगर मेरा चेहरा उसमें है, तो ऑटोमेटिक खोल देता है, अगर मेरा चेहरा नहीं है, तो वो खोलता नहीं है। राइट, सो ये सब ऑलरेडी हमारे सिस्टम में आ चुका है, बट इसको हम अडेप्ट कर रहे हैं, अडेप्ट हो गए। एजुकेशन में कैसे करें इसका? दैट इज समथिंग विच टीचर्स एंड एजुकेटर्स लाइक यू एंड मी विल हैव टू वर्क टुगेदर। तो ये जो सेशंस हैं, तो the intention of these sessions is to bring in that different thought process. तो जब आप ये लिंक खोलोगे, तब यहाँ पे आपको पूरा बुक लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में।
आप ये रीड सैंपल भी कर सकते हो। रीड सैंपल में 6-7 पेज वो दिखाता है, उसमें बताता है कि क्या क्या है, कौन सा चैप्टर में कैसा है, ये वो एंड ऑल दैट। सो ज्यादा लेंथी नहीं है, 59 पेजेस है। और किंडल पे 59 पेजेस बहुत अच्छा फॉन्ट में आता है, तो इट बिकम्स इजी टू रीड। तो ये देख लो, और ये आपके स्कूल में भी शेयर करो, राइट? आपके प्रिंसिपल हो, डिसीजन मेकर हो, या और कोई आपके टीचर फ्रेंड्स हो, ताकि वी ऑल कोलैबोरेट। इट्स ऑल अबाउट कोलैबोरेशन। अगर हम कोलैबोरेट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हमें ही होने वाला है। हमें तो होगा ही, हमारे बच्चों को भी होगा, क्योंकि ये तो चेंजेस होते रहेंगे। अभी 10 साल पहले ऐसा कुछ एआई आएगा और ऐसा कुछ बदलाव लाएगा, ये हम सोच भी नहीं पाते। बट अभी लास्ट 3-4 सालों में इतना बदलाव आ रहा है that I have to be adaptive. I have to ensure that I keep pace with it. उसके साथ कॉम्पीट नहीं करना है, उसको हमारा कोलीग और कोवर्कर बनाना है। That is why it is assisted intelligence, additional intelligence leading to adaptive innovation. We will innovate through collaboration. All right. Yes. Any questions? Maybe I should ask for questions. Yes. Yes, please. Any thoughts from you? Any questions? I have a few more topics. All right. No. Okay. ठीक है। अगर बाद में भी आपको कुछ पूछने जैसा लगा तो we have it. Right. अभी बहुत टाइम है। Okay. So when we talk about classroom, right? What is assisted intelligence? Right. So assisted intelligence simple definition है। हमने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया है, बट अभी डेफिनेशन बता रहा हूं। और इसके अलावा आपको इसका इस्तेमाल आप कैसे कर पाओगे वो सोचना है आपको, राइट? सो व्हाट इज इट? इन्वॉल्व्स एआई टेक्नोलॉजीज दैट एड ह्यूमंस इन परफॉर्मिंग टास्क्स मोर इफेक्टिवली, फोकसिंग ऑन सपोर्ट rather than full automation. मैं ऑटोमेट नहीं कर रहा हूं, मैं सपोर्ट ले रहा हूं। सो दैट इज असिस्टेड इंटेलिजेंस। एडिशनल इंटेलिजेंस तो बता दिया, अभी असिस्टेड इंटेलिजेंस। It enhances human capabilities, especially in complex and dynamic environments. Dynamic क्यों है? आज के जमाने में सब कुछ डायनामिक है। डायनामिक यानी इतने जल्दी चेंजेस हो रहे हैं, राइट? बर्ताव में चेंजेस हैं, समझने में चेंजेस हैं, राइट? इंटरेक्शन में चेंजेस हैं, तो मुझे बहुत अडेप्ट करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड विद अडैप्टिव इनोवेशन इनिशियली। तो मुझे बच्चों के हिसाब से मुझे अडेप्ट करना है, बच्चों के समझने के तरीके के साथ मुझे अडेप्ट करना है, तो डायनामिक हो गया ना पूरा। सो इतना डायनामिक है कि मुझे चेंजेस शायद हर दिन करने पड़े, नॉट नेसेसरली एवरी डे, बट वी नीड टू कीप अ वॉच ऑन इट, राइट? सो अगर ये करना है तो इन असिस्टेड इंटेलिजेंस सिस्टम्स को कैसे यूज करें? Assisted intelligence systems is nothing else but the same examples: ChatGPT and Copilot and Meta AI and all of that. All right. So example again. Yes. So challenges. Addressing the challenges. Increasing workloads. बताओ मुझे, workload दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। Yes. Diverse student needs. Yes. Students तो अलग है ही, हर स्टूडेंट अलग है, हर स्टूडेंट अलग है, हर स्टूडेंट का बैकग्राउंड अलग है, हर स्टूडेंट का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग है, कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, राइट? और समझने का ढंग भी अलग है, सीखने का ढंग भी अलग है, सीखने का इंटरेस्ट भी अलग है। तो इतना सारा कॉम्प्लिकेशंस मेरे क्लासरूम में जब आता है, तो मुझे डेफिनेटली, राइट, I have to be better. I have to be on top of all this. And administrative burdens, yes, administrative burden तो है, पेपर वर्क है,
रिपोर्ट जनरेशन है, पीटीएम का प्रिपरेशन है, पीटीएम के पहले एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन है, एग्जामिनेशन के पहले पोर्शन कंप्लीट करने का टेंशन है, पोर्शन कंप्लीट करने से पहले लेसन प्लान, राइट? ओ माय गुडनेस, लेसन प्लान, टाइम टेबल, इज लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। नाउ ये सब मुझे अगर करना है तो एआई का इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ, राइट? आपका प्रेशर थोड़ा कम कर सकता हूँ और एफिशिएंसी बढ़ा सकता हूँ, ताकि आप आराम से सोच के समझ के कर पाओ। और एक बार आपने ये कर दिया तो वो ऑटोमेटेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी ट्राई किया है या नहीं पता नहीं मुझे, बट चैट जीपीटी, राइट? चैट जीपीटी एक एग्जांपल ही ले रहा हूँ, बाकी सब लोग भी करते हैं, यानी जमाने भी कर पाएगा, क्लाउडे भी करेगा, परप्लेक्सिटी भी करेगा, राइट? और बार्ड भी करेगा, डेली भी करेगा, सब करेंगे। बट चैट जीपीटी हम सबको क्या आसानी से इस्तेमाल कर पाते हैं, इसलिए चैट जीपीटी कैन क्रिएट अ वेरी गुड लेसन प्लान फॉर यू। चैट जीपीटी कैन क्रिएट अ गुड टाइम टेबल फॉर यू। टाइम टेबल के हिसाब से आपका लेसन प्लान, हर दिन क्या करोगे, हर दिन आप एक्टिविटी क्या दे पाओगे, ये भी सजेस्ट करेगा, राइट? अगर कोई सजेस्ट कर रहा है तो अभी असिस्टेंस हुआ ना, असिस्ट कर रहा है, तो उसको आप लेके सिर्फ उसको थोड़ा ट्विक करना है। 80% काम वो करेगा, समझो। मेरे हिसाब से 90-95% काम करके दे रहा है, बट इवन इफ इट गिव्स यू 80% वर्क डन, आपको सिर्फ वो 20% करना है, तो 80% टाइम सेव हो गया। जो एक लेसन प्लान करने के लिए 2-3 घंटे लगते थे, ये 2-3 मिनट में करके दे देगा। और बाद में आपको 10-15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा या 3 घंटे का आधा घंटा, यानी 2.5 आवर्स इधर ही सेव हो गए आपके, राइट? ऐसे ऐसे इसको इस्तेमाल करना है, तो ट्राई करो एक बार। फॉर एग्जाम्पल, यू विल हैव टू गिव द राइट प्रॉम्प्ट, इसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं, आपको पता ही होगा, बट बता रहा हूँ। प्रॉम्प्ट इज नथिंग एल्स बट हाउ यू आर इंटरेक्टिंग विद इट। सो प्रॉम्प्टिंग इज कि फॉर अ ग्रेड 4 साइंस सब्जेक्ट चैप्टर 1, वो नाम देना पड़ेगा, चैप्टर 1 एज पर सीबीएसई सिलेबस, एज पर आईसीएसई सिलेबस, एज पर आईबी, एज पर स्टेट बोर्ड, whatever, right? Create a lesson plan for chapter 1 and chapter 2। तो वो कुछ ये करके आउटपुट देगा। जब वो आउटपुट देगा तो आप वो लेके उसको समझ के जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करके आपका इंटेलिजेंस भी उस पे डाल सकते हो, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है कि ये इतना, ये जो बता रहा है कि ये 45 मिनट्स में सिखा पाएगा, 45 मिनट्स नहीं, इसको तो इट विल नीड ऑलमोस्ट 60, नहीं 90 मिनट्स लगेगा। तो इंस्टेड ऑफ इट सेइंग 1 क्लास, यू विल हैव टू मेक इट इनटू 2 क्लासेस, राइट? सो ऐसे आपको पता है, सिर्फ वो नहीं, आपके बच्चे कैसे हैं वो आपको पता है, क्योंकि यू आर इंटरेक्टिंग विथ योर किड्स ऑन अ डेली बेसिस। तो उनकी क्षमता क्या है वो आपको पता है, वो कितना ग्रास्प कर पाएंगे वो आपको पता है। चैट जीपीटी ने दे दिया कि ये 1 पीरियड में खत्म हो जाएगा, बट आपको पता है कि अरे 1 पीरियड में तो उनको समझा समझा के मैं थक जाऊंगी, फिर भी वो नहीं समझेंगे, तो दूसरे क्लास में फिर से रिवीजन देके, एग्जाम्पल देके उनको एक्टिविटी देना पड़ेगा, राइट? सो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस का खेल है, ये आपको समझना है और उसको आपके फायदे के अनुसार इस्तेमाल करना है। वो दे देगा आपको जो भी चाहिए, वो दे देगा। वो आपका रिलेवेंसी कैसे आएगा उसमें, वो आपको देखना है। दैट इज वेयर इट इज टॉकिंग अबाउट पर्सनलाइजेशन। मुझे वो पर्सनलाइज करना है मेरे हिसाब से, मेरे क्लास के हिसाब से, क्योंकि मेरे क्लास के बच्चे अलग हैं आपके क्लास के बच्चों से, और हर बच्चा अलग है। तो आई विल हैव टू एंगेज इफेक्टिवली, आई विल हैव टू एंश्योर दैट दे विल लर्न इफेक्टिवली, दे विल एंगेज इफेक्टिवली। तो एंगेज करने के लिए मुझे कुछ एक्टिविटीज करने हैं, कुछ उनको टास्क देने हैं, ग्रुप वर्क देना है, प्रोजेक्ट देना है। प्रोजेक्ट यानी घर में नहीं, प्रोजेक्ट घर में देंगे तो वो मम्मी डैडी के साथ ही करेंगे, मम्मी डैडी नहीं कर रहे हैं तो वो भी चैट जीपीटी से ही करेंगे। नहीं, वो भी करवाना है तो वो भी एक प्रोजेक्ट होता है, बट अगर क्लास में ही करना है तो आपको पहले से तैयार होके जाना है, तो उसका
effectiveness बढ़ जाता है, right? The interaction. This is how I will address some of the educator challenges when it comes to academics, when it comes to your workload, whether it is administrative, whether it is academics, whether it is assessments. Right? Yes. Any questions? कुछ question है क्या? All right. Nothing at all. Okay. Cool. Okay. बाद में हम ये करेंगे. Okay. तो अब क्या है जो हम बात कर रहे हैं? How assisted intelligence can streamline administrative duties, teaching methods, and transform assessment practice. वही बात कर रहे हैं ना हम लोग. Okay. तो अगर वो बात कर रहे हैं तो पार्ट 2 में क्या है? ऑपरेशंस विद एआई, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स, एकेडमिक टास्क्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया है, इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स. एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में कैसे कर पाएगा, कैसे मदद करेगा, वो भी थोड़ा बात किया है, बट लेट्स बी लिटिल स्पेसिफिक. रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट? मुझे टाइम टेबल बनाने से पहले मुझे रिसोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए. मेरे पास कितने क्लासेस हैं, मेरे पास अगर ऑडियो विजुअल कंटेंट दिखाना है तो ऑडियो विजुअल कंटेंट दिखाने के क्लासेस कितने हैं, राइट? स्मार्ट बोर्ड है क्या, या एवी लैब में जाके करना पड़ेगा, कैसे, क्या, वो सब. सी दीज आर बेसिक स्टफ, राइट? So if I give all the input to my AI system, it will not only allocate the classrooms, it will also tell what materials are needed. क्योंकि आप वो प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आप बोलोगे कि मैं ये प्रोजेक्ट करने वाला हूँ, तो उसके लिए मटेरियल क्या क्या चाहिए, तो वो भी बता देगा थोड़ा. कभी कभी हम बहुत सारे कामों में उलझ जाते हैं, तो कभी कभी भूलने की बीमारी भी आ जाती है, राइट? तो ये हमें याद दिलाएगा. दिस विल टेल अस these are the material that you would need, this is the classroom. आपके इतने टीचर्स हैं, इतने फैसिलिटीज हैं, इसको आप इफेक्टिवली कैसे यूज कर पाओगे. सो बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड रिड्यूस्ड वेस्ट. तो इससे ये आपको क्या मदद मिलेगी कि इट विल look into all of your resources and tell you what you can do. Yes, I saw Deepmala madam raising your hand. Any questions? Yes. कुछ ठीक सुनाई नहीं दे रहा है. या नो सर. आप बताइए. नहीं. नो सर. नो. ओके ओके, ठीक है. राइट. सो लेट्स सी. ये जो हम बात कर रहे हैं ना, तो ये क्या है? It's all about communication, right? So automating routine communication, जो routine communication है उसको ऑटोमेट कर पाएगा ये जो AI सिस्टम है. अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो ऑटोमेट कर पाएगा. सो रिमाइंडर्स, ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स. सो प्रिंसिपल मैडम को रिमाइंडर चाहेगा कि आज ये क्लासेस हैं और ये टीचर्स हैं, ये टीचर एब्सेंट है. अच्छा, तो क्या करेंगे? So all of these things, internal and external communication with parent and students, is so that you are sharing the information. Information dissemination is that you are sharing the information with your students and the parents in an effective way. WhatsApp में भी अगर जाना है तो ऑटोमेटेड ईमेल या ऑटोमेटेड मैसेज भी हम तैयार करके भेज सकते हैं. मुझे टाइप करते बैठने की जरूरत नहीं है. 80% वो टाइप करके दे देगा, 20% मुझे चेंजेस करना है, वो चेंजेस करके आई कैन स्टार्ट सेंडिंग, राइट? सो इट हेल्प्स इन ओवरऑल एंगेजमेंट. ठीक है, वो पता है. अभी आपका काम क्या है? कम्युनिकेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इज बिकॉज interpersonal communication is all about building credibility, showing that you care, having the right clarity, right? It's all about stroke, rapport, immediacy, and confirmation that students want from a teacher. अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में बिजी हो जाऊंगी,
अगर मैं एकेडमिक टास्क में बिजी हो जाऊंगी, असेसमेंट टास्क में बिजी हो जाऊंगी, तो ये सब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. I will not be able to have the right relationship with my students. और अगर मेरा रिलेशनशिप स्टूडेंट के साथ एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, तो टीचिंग लर्निंग गैप आना is but natural, right? So you need the right motivation, the right engagement होना चाहिए, right? You need to engage with each of the students in the right way. It's all about knowing their attitudes, right? Unless and until you don't know your student well, you will not be able to teach them well. And it's all about your involvement in not just teaching them the subject, involvement in not just preparing the test paper or assignment or project or exam paper and correcting it. Involvement is all about knowing that person individually. पता चल जाता है ना? So it's the involvement. It's also about your joint success. ये आपका सक्सेस या बच्चों का सक्सेस नहीं है, ये जॉइंट सक्सेस है. अगर बच्चे सक्सेसफुल होंगे तभी आप सक्सेसफुल होंगे. तो उनको सक्सेसफुल कैसे बनाना है? With all of this motivation, engagement, knowing their attitudes, being involved. It's all about well-being, right? आजकल तो physical well-being नहीं, more so mental well-being की बात करते हैं. तो मुझे बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. Immediacy, right? Unless and until I don't spend time, quality time with the children, I will not be able to bring in that wellness in them, wellness within us. Only when I know my students, I will be confident. Only when I know my students' strengths and weaknesses, I will be able to bring in corrective actions, remedial actions. And then class attendance तो एक है, willingness to communicate. बहुत सारे बच्चे आजकल communicate करते ही नहीं है, क्योंकि वो open नहीं होते हैं. वो open इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है open कैसे होना है. उनको पता ही नहीं है कि बात कैसे करनी है. So this is where I think teachers will have to spend time. ये communication है. आपका जो effective communication की बात कर रहे हैं, ये सब उसमें included है. Interpersonal communication. And it's about showing the interest, involvement, interest, engagement, motivation, right? All of it. This is the least of the problem. All of the things are very important. If I motivate them, if I engage them well, if I know their attitudes, if I'm involved with them, I'm worried about their success and their well-being, class attendance, मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं, 100% क्लास अटेंडेंस रहेगा. बीमार भी है तो भी मेरे क्लास में आने की जिद करेंगे बच्चे, राइट? नॉट दैट बीमारी में उनको परेशान करना है, बट इट्स दैट एटीट्यूड दैट दे हैव. कई बार ऐसे होता है कि बच्चे दूसरे क्लास में, हायर एजुकेशन में जहां मैं पढ़ाता हूँ, वहां पे दूसरे क्लासेस में, दूसरे सब्जेक्ट में, दूसरे टीचर्स के क्लास में वो नहीं जाएंगे. और कुछ भी हो, मेरे क्लास में तो आना ही है. That's because I ensure that I focus on all of this. ये जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, वो मैं खुद implement करने के बाद ही बात कर रहा हूं. And that will help in learning. Learning किसको करना है? बच्चों को करना है. आपको क्या करना है? टीचिंग करवाना है. और टीचिंग के साथ आपका पॉजिटिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी होना चाहिए. और उनका अचीवमेंट, उनका सक्सेस आपका अचीवमेंट और आपका सक्सेस है. सो अगर ये इन चीजों में आपको ध्यान देना है, तो मुझे असिस्टेंस तो चाहिए भाई, मदद तो चाहिए. और कौन मदद करने वाला है? मेरा जो एआई सिस्टम है, उससे मैं मदद ले सकती हूँ, ले सकता हूँ. और वही तो बात कर रहे हैं हम लोग, राइट? इज इट ऑल मेकिंग सेंस? आप समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? तो सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है? तो ये जो एग्जांपल्स हैं, ये बहुत सिंपल है, ये आप भी इस्तेमाल करते रहेंगे. फॉर एग्जांपल, ग्रामर चेकिंग सॉफ्टवेयर लाइक ग्रामरली. ये थोड़ा हायर 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में जब आप कंप्यूटर बेस्ड असाइनमेंट्स सबमिशन करते हो, तो ग्रामरली का इस्तेमाल कर सकते हो. ग्रामरली इज अ टूल, राइट? सो ग्रामरली विल हेल्प
ना कि आपको, बट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस और ग्रामेटिकली करेक्ट सबमिशंस अगर बच्चों को करना है या करवाना है, वो ग्रामरली यूज करके भी कर सकते हैं। वो कर सकते हैं ना, उनको भी बोलो ग्रामरली यूज करने को। आजकल बहुत सारे हाई स्कूल के बच्चों के पास मोबाइल फोन और लैपटॉप तो रहता ही है, घर में तो कंप्यूटर रहता ही है, तो उसमें ग्रामरली यूज कर सकते हैं। उससे उनका ग्रामर अच्छा होता है, इंग्लिश ग्रामर, राइट, क्योंकि वो करेक्ट करता है। टेक्स्ट टू स्पीच प्लेटफॉर्म्स, ओके, तो बहुत सारे ऐप्स हैं। ये लास्ट टाइम भी मैंने बोला था आपको। ऐसे ही कुछ सोच रहे हो, तो सोचते सोचते आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो सोचते सोचते आप एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, राइट। तो वो जो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है, वो ऑडियो सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, ऑडियो का टेक्स्ट में कन्वर्ट भी कर रहा है। तो ऐसे ऐसे ऐप्स भी हैं, और उल्टा भी है। टेक्स्ट डालूंगा तो वो स्पीच बना के दे देगा मेरे आवाज में। तो अवतार्स, आई कैन क्रिएट माय ओन अवतार्स। सो इससे थोड़ा क्लासरूम में इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं, राइट। सो अगर मेरा कुछ रिटर्न कंटेंट है, उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर देगा वो। ओके, सो रिटर्न इज बेसिकली यू हैव टाइप्ड, यू हैव अ डॉक्यूमेंट, उसको वो ऑडियो में कन्वर्ट कर लेगा। बेसिक फ्लैश कार्ड एप्लीकेशंस दैट डिजिटाइज ट्रेडिशनल स्टडी मेथड्स। अगर मुझे फ्लैश कार्ड्स दिखाने हैं, राइट, फ्लैश कार्ड्स, चार्ट्स, ये सब अगर मुझे बनाने हैं, तो उसके लिए भी आई कैन मेक यूज ऑफ परप्लेक्सिटी, आई कैन मेक यूज ऑफ क्लाउड। ये क्या है मैं बताता हूँ। ये जो मैंने किया था, ये जो, ये, हाँ, इसके पहले ना, हाँ, ये जो है ना, ये जो है, ये मैंने परप्लेक्सिटी से बनाया, लेवल्स ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टीचिंग। ये डिजाइन परप्लेक्सिटी से बनवाया, और कितने, 2 मिनट से, 2 मिनट के अंदर ये करके दे दिया उसने, राइट, वंडरफुल। इसको लेके मैं इजीली एक प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ, और वही कर रहा हूँ, राइट। सो वही वही आपको भी करना है। सो लेट मी गेट देयर, राइट। सो इसका इस्तेमाल आप कैसे कर पाओगे, वो आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, राइट। सो दीज एग्जांपल्स, फ्लैश कार्ड्स अगर मुझे कराने, वो दैट वाज लाइक अ फ्लैश कार्ड, राइट, इट्स एन इमेज दैट केम इन। एंड सिंपल प्लेगियरिज्म डिटेक्शन टूल्स, ओके, प्लेगियरिज्म इज बेसिकली अगर कुछ कॉपी कर रहे हैं, तो इधर से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, राइट। कभी कभार बच्चे करते हैं, कभी कभार नहीं, हर बच्चा करता है। तो वो चेक करने के लिए भी बहुत सारे टूल्स हैं। सो दीज आर ऑल असिस्टेड, दीज आर असिस्टेंट्स, राइट, असिस्टेड इंटेलिजेंस। तो ये सब मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, जस्ट टू एंश्योर दैट क्वालिटी टीचिंग हो ही रहा है, क्वालिटी लर्निंग भी हो रहा है या नहीं, ये समझने के लिए मुझे ये चेक्स एंड बैलेंसेस तो डालने पड़ते हैं, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट reducing your administrative load. It's all about bringing in the right focus on the academic delivery, academic content, and it's all about creating the right assessments and assignments. इसमें सब आपको असिस्टेड इंटेलिजेंस मदद करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, असिस्टेड इंटेलिजेंस मदद करेगा। Yes, now I'll open it up for any questions. Any questions from anybody, any thoughts? कुछ शेयर करना चाहते हो तो, 1 साल से, सॉरी, 1 घंटे से मुझे सुन रहे हो, तो जाहिर है कुछ ना कुछ सवाल तो आते रहेंगे। या नहीं? ओके, ऑल गुड। तो आप सोचो कि इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो। आपके क्लासरूम में, आपके क्लास में, आपके स्कूल में, राइट। यस, सो दैट्स अबाउट इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आप शाम के वक्त टाइम निकाल के अटेंड अटेंड किया, इसलिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
We will have such sessions, more such sessions in the future, which you will be communicated, you will be knowing. So please attend. Until then, keep thinking about additional intelligence, assisted intelligence, and adaptive innovation. Yes, thank you. Thank you. sir. Thank you so much. Thank you. Sir. Bye-bye. Bye.